Yes, good morning, dear students. Today we will discuss the maths paper that yesterday took place. So I am going to provide you solution of each of the question. The first question was, let X be the set of all persons living in a city. Persons XY in X are said to be related as X less than Y if Y is at least 5 year older than x, correct? So this is what a relation it is mentioned, that y is at least 5 year older than x. Then which one of the following is correct? Means we have to tell whether this relation is reflexive, symmetric, transitive, or out of these four one of the options should be correct. So first we'll check the reflexive property. In reflexive we know that at x less than x, which is not possible, a person which is never be less than itself, older than itself, so reflexive is not possible. Now we'll check the symmetric property, whether it is symmetric relation or not. So if x less than y, which means a person which is y is older than x, it never implies that x is older than y, because x is going to be smaller than y. So therefore symmetric also fails here, because mention it is x less than y is greater than x, y is older than x, but it is not possible that x right here x is greater than older than y, which is not possible. So symmetric also fails here. Now we'll talk about transitivity, whether it is transitive or not. Transitive or not. So if x less than y less than z, so we can say that x less than z. So it holds transitive property. So we can say that the above relation x less than y is transitive but neither reflexive nor symmetric. So option B is the correct one. Option B we can say correct. ठीक है, या कह सकते हैं ऑप्शन बी, क्योंकि जो x लेस देन y की रिलेशन है उसमें हमने क्या दिया हुआ था कि y इज एटलीस्ट 5 year older देन दिस x. सो रिफ्लेक्सिव फेल्स बिकॉज अ पर्सन इट सेल्फ छोटा नहीं हो सकता. अगर x लेस देन y है तो इट्स नॉट y लेस देन x होगी, करेक्ट. तो सिमेट्रिक भी फेल हो गई. ट्रांजिटिव इट होल्ड्स बिकॉज x लेस देन y लेस देन z, सो x लेस देन z. So this relation is only transitivity property it shows here. So for this question the option is B. The relation is transitive but neither reflexive nor symmetric. Fine. Now we'll move to question number 2. Question number 2 में पूछी गई थी कि which of one of the following matrices in elementary matrix. So elementary matrix के लिए कैसा आइडिया है कि अगर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता. तो इस ऑप्शन में हम देखें तो अगर मैं ऑप्शन बी को लूँ 1 5 0 0 1 0 0 0 1, अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 हो जाए तो इस डिटर्मिनेंट के इस मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोल देंगे. तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ 1 माइनस 0 माइनस 5, दिस इज 0 माइनस 0 which is 0 and plus 0 into something which is 0. So this gives you 1. So option B is elementary matrix. Fine. So to check a elementary matrix, what we do generally, we get a determinant of this. अगर determinant value इसकी यूनिट आती है 1 आती है तो ये elementary matrix होगा, जो आपकी यूनिट मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट होता है. ठीक है. आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. डियर क्वेश्चन नंबर 3 में था, consider the following statement in respect of the given equation. So we have x square plus 2 whole square plus 8x square equals to 6x into x square plus 2. अब इसके अंदर स्टेटमेंट में क्या मेंशन है कि ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स. पहले तो ये स्टेटमेंट देखना है कि इसकी हर एक रूट कॉम्प्लेक्स होगी या नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट. एंड सेकेंड स्टेटमेंट थी द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6.
फाइन। तो हमें पहले इसके रूट्स को देखना होगा वेदर इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसके जो रूट्स आते हैं उनका सम क्या आना चाहिए 6, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। तो फॉर दिस फर्स्ट विल कैलकुलेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो हमने करना क्या है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आइए आप, 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ फैक्टराइज, so x square plus 2 whole square minus 4x into x square plus 2 minus 2x into x square plus 2 plus 8x square equals to 0, करेक्ट। अब कॉमन ले लें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया, सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेफ्ट विथ माइनस 4x, करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक रह जाएगा और ये माइनस 4x, और यहाँ से आप माइनस 2x कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x। फाइंड इट। नाउ ये कॉमन आ गया, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दो फैक्टर निकल के आ गए। अब इधर ये देखिए, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब इनके रूट्स देखते हैं। तो पहले का रूट्स अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 लें इक्वल्स टू 0, तो इसका रूट हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a, correct. So this is nothing but x equals to 4 plus minus, this is root 8 by 2. So x equals to 2 plus minus root 2, fine. So this is what the real root, 2 plus minus root 2, and x square minus 2x plus 2, which is 0. So we'll get the x is 2 प्लस माइनस, इसके सोल्यूशन देख लें हम, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ 8 अपॉन 2a 2। सो ये आपका 4 2i यू विल गेट बाई 2 विच इज़ 1 प्लस माइनस आई। सो ये कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं और दो रियल रूट्स आ रहे हैं। तो हमारे स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, सो इट इज़ रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड में स्टेटमेंट में कह रहा था द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि आप ऐड करोगे यू वोंट गेट द सम 6। सो द ऑप्शन इज डी, नीदर 1 नॉर 2। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या दी हुई थी, नीदर 1 स्टेटमेंट और नॉट सेकेंड स्टेटमेंट इज, सो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा नीदर 1 नॉर 2, बिकॉज ना तो इसके टोटल चारों रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, 2 रियल आ रहे हैं, 2 कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, एंड इनका सम जो है वो 6 तो होगा नहीं कभी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड इट। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दी हुई है कि in solving a problem that reduces to a quadratic equation, one student makes a mistake in the constant term and obtain 8 and 2 for roots. Fine. So let's say roots are क्या दी हुई है, 8 and 2, ठीक है। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा डियर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट which is x square minus 10x plus 16 equals to 0. एंड इसमें उन्होंने क्या कि दिस टर्म वन स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन द कांस्टेंट टर्म, उस कांस्टेंट टर्म में वो मिस्टेक करता है, ठीक है। अनदर स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक ओनली इन द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म, दैट एंड इन द कोफिशिएंट एंड ही फाइंड्स द रूट -9 एंड -1। सो इसमें क्या होता है, मिस्टेक इन कांस्टेंट टर्म, मिस्टेक इन
द कांस्टेंट टर्म, करेक्ट, कांस्टेंट टर्म में ये मिस्टेक करते हैं. सो दूसरा स्टूडेंट जिनके रूट्स है -9 एंड -1, तो उनका इक्वेशन क्या हो गया, -9 -1 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0, सो विच इज एक्स स्क्वायर माइनस, this is going to be minus 10x plus 9, correct. So minus 10x plus 9. And now the question में क्या कह रहा है कि the correct equation is what. तो पहले वाले इक्वेशन में मिस्टेक उसने कांस्टेंट टर्म में करी है, करेक्ट, और दूसरे वाले स्टूडेंट में उसके द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म. कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म क्या है यहाँ पे, दिस इज हियर, सो ये 10x है, फाइन, यहाँ 10x दिख रहा है. सो इन दोनों इन्फॉर्मेशन से अपने को क्या मिल रहा है कि राइट इक्वेशन हमें क्या दिखने चाहिए, ये -10x और -10x, और 16 और 9 की जगह पे हमें क्या आएगा, केवल +9. सो द करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, फाइन. सो ये दिस इज द गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. इसको अच्छे से समझना है आपको कि रूट्स जहाँ पे उसने मिस्टेक किया कांस्टेंट टर्म विच इज 16, करेक्ट, तो √8 और -8 एंड 2 था, तो ये +16 आई. और जब दूसरे स्टूडेंट ने मिस्टेक किधर की, जो एक्स का जो कोफिशिएंट है वहाँ पे उसने -9 और -1 लिखा रूट्स, तो -1 लिखा, तो सम ऑफ द रूट्स इज -10x और प्रोडक्ट 9 आ गई. तो ये -10x और ये -10x सेम दिख रही है, तो इस डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, 16 और 9, करेक्ट. तो अगर मैं -9 -1 यहाँ लूँ और यहाँ पे भी लूँ तो हमारा इसमें चेंज आएगा दोनों में, तो करेक्ट यहाँ पे 9 ही होगा, 16 तो आएगी नहीं, फाइन. सो द करेक्ट इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. सो देयर वी कैन से ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ठीक है, अंडरस्टूड. इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि इनका जो प्रोडक्ट था दोनों रूट्स का वो 16 था, और यहाँ पे इनके जो रूट्स है -9 एंड -1 है, बट इनका जो सम का जो कोफिशिएंट था, ये एक्स का कोफिशिएंट, उसमें उसको मिस्टेक दिख रही थी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ लिख रखा है ना कि अनदर स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक ओनली इन द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म फाइंड्स -n -1 रूट्स. तो -1 रूट्स में अगर आप ऐड करें तो ये -10x हुआ, और मल्टीप्लाई करें तो +9. तो वेयर इज़ द डिफरेंस, 16 एंड 9. सो अगर रूट हमने डिसाइड किया -1 एंड -1, तो ये प्रोडक्ट 9 आएगा, और जो अगर -1 -9 यहाँ पे भी ले आ तो प्रोडक्ट शुड बी 9, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देयर क्वेश्चन पूछी गई है, ए इज अ मैट्रिक्स 2 1 7 5, देन a प्लस 3a इनवर्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है. सो क्वेश्चन में आपको पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए वी हैव शॉर्टकट 1/AD माइनस BC 10 minus 7, correct. 5 will be here, 2 will be here, -7 and -1. So this is nothing but 1/3, 5 -7 -1 और 2. ये आ गया अपना A इनवर्स, ठीक है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A प्लस 3A इनवर्स. So A we have 2 1 7 5 और 3A inverse यानी 3 into this, so 3 get cancel, left with 5 -7 -1 2, ठीक है. Now when you add this you will have 7 0 0 7 which becomes 7i. I यूनिट मैट्रिक्स है, so 7 into i करेंगे तो 7 0 0 7 आएगा. Can we write this way, 1 0 0 1. So when you multiply, so it will multiply to each term, so this gives you 7i. So ऑप्शन में हमारा ऑप्शन C is the correct one. Fine. 7i they have mentioned. So a plus 3a minus 1 equals to 7i.
ठीक है, चलिए. सो आई बिलीव दिस प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. 3A इनवर्स, दैट मीन्स पहले हमने A इनवर्स कैलकुलेट किया. A इनवर्स इज इंपॉर्टेंट हियर. सो वंस वी कैलकुलेट A इनवर्स हियर, देन द क्वेश्चन की डिमांड थी A प्लस 3A इनवर्स क्या होगी. तो A इज 2175 and plus A inverse 3 times of A inverse. So 3 get cancelled. So this came 5 minus 1 और 2. इन दोनों को आपने ऐड किया, which came 7i. Fine. Now we'll move to next question is question number 6. This question is from set. The question is, in a class of 60 students, 45 students like music, 50 students like dancing, 5 students like neither. That is very important. 5 students like neither. Then the number of students in the class who like both music and dancing is. This is the question. इसको हम वेन डायग्राम से पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन करें. इसको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, लुक एट दिस. लेट हम सपोज कर लें कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी x. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है क्लास में x है, जो बोथ म्यूजिक एंड बोथ लाइक बोथ x नंबर ऑफ स्टूडेंट, या ऐसे लिख लीजिए, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like both music and dancing. करेक्ट. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है who like both music and dancing is x. ठीक है. सो हम पूरी इंफॉर्मेशन को पिक्चोरियल रिप्रेजेंट करें तो दिस इज आर x. ये x स्टूडेंट है जो बोथ डांसिंग एंड म्यूजिक को लाइक करता है. नाउ इंफॉर्मेशन में क्या दी हुई थी कि टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक, यानी 45 माइनस x ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट, म्यूजिक वाला पार्ट. म्यूजिक मैंने इसको दिया है और इसको डांसिंग. देन 50 स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग, सो ये 50 माइनस x हो जाएगा डियर. एंड 5 स्टूडेंट लाइक नीदर, यानी 5 स्टूडेंट्स जो है वो दोनों ही नहीं करते हैं, ना तो म्यूजिक ना ही डांसिंग. सो अब हम इस टोटल को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें. सो इसको आप क्या कर सकते हैं, 45 माइनस एक्स प्लस दिस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स, फाइन, एंड प्लस 5 इज गोइंग टू बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. ठीक है. सो पिक्चोरियल आप इस तरह से क्वेश्चन को एलॉबरेट कर सकते हैं. फाइन. हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांसिंग आई टुक एक्स. तो क्वाइट नेचुरल है कि जो म्यूजिक 45 स्टूडेंट लाइक म्यूजिक, विच मीन्स इस x को माइनस करना होगा 45 से, तो ओनली दैट म्यूजिक विल कम. एंड देन डांसिंग में 50 माइनस दिस x वी हैव टू माइनस. फाइन. एंड जो 5 स्टूडेंट हैं नीदर लाइक म्यूजिक नॉर डांसिंग, सो आई केप्ट इट 5 हियर. सो अगर मैं इस पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर करूँ तो 45 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स एंड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 60. अब इसको आप सिंप्लीफाई करें. So x is going to be, let's get cancel, minus x will take that side, so x equals to 100 minus 60, which is going to be 40. Correct. So the number of students in the class who like both music and dancing is 40. So option B is the correct one. Option B हमारा करेक्ट था. ठीक है. अंडरस्टूड. ये वेन डायग्राम से इट बिकम्स सिंपल, क्योंकि आप इसको अगर फॉर्मूला के मेथड से कोशिश करेंगे दैट बिकम्स वेरी लेंदी और इट डिफिकल्ट ऑल्सो. तो इन्फॉर्मेशन में हमने x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांसिंग. ठीक है. और इन्फॉर्मेशन से 45 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक, तो यहाँ 45 माइनस एक्स, 50 लाइक्स डांसिंग, सो इट बिकम 50 माइनस एक्स बिकॉज x हमने कॉमन ले रखा है, एंड 5 नीदर नॉर है ये. करेक्ट. तो हम सबको ऐड करें तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा 60, एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट x इक्वल्स टू 40. सो 40 इज द करेक्ट ऑप्शन. फाइंड हियर. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रखा था इफ log 2 with base 10 log 2 to the power x minus 1
and log 2 to the power x plus 3 are three consecutive terms of an AP. These are three consecutive terms of an AP. करेक्ट AP में देन वैल्यू ऑफ x चाहिए, अपने को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी. सो वी नो दैट ये AP में है तो 2 टाइम्स ऑफ दिस log 2 to the power x minus 1 is equals to log 2 with base 10 plus log 2 to the power x plus 3 with base 10. ये होता है अगर ABC are in AP तो 2B equals to A plus C. फाइन. अब यहाँ पे इंडियर इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप लॉग को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए 2 to r x माइनस 1, ये 2 इधर आया और ये log m प्लस n तो 2 इंटू 2 to the power x प्लस 3 log m इंटू log n log m प्लस n एंड देन log इधर का और इधर का log दोनों ही कैंसिल हो गया. ठीक है, ये इसमें पावर पे गया तो log वी कैन कैंसिल इट. नाउ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अगर आपके पास ऑप्शन में अगर जो x की वैल्यू वो डालेंगे तो मे बी यू विल गेट हियर. अगर टाइम सेव करना चाहते हैं तो अगर ऑप्शन की वैल्यू आप डाल दें, अगर मैं ऑप्शन x इक्वल्स टू 1 डालूँ, अगर टाइम है तो यू कैन चेक, या फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. 2 to the power x को आपने t लेना पड़ेगा. ठीक है, और इससे इक्वेशन बना के समवेयर यू विल गेट t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल्स टू 0. सो अपने को t 1 और 5 निकल के आएगा, दो वैल्यू. सो 2 to the power x इक्वल्स टू 1 दैट इज 2 to the power 0. सो x एक 0 आ गया जो पॉसिबल नहीं है. x 0 हम लेंगे नहीं क्योंकि x 0 लेने पे ये log 0 हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू 0 वी आर नॉट टेकिंग. दूसरा जो 5 लिया है हमने 2 to the power x इक्वल्स टू 5. सो व्हेन यू टू गेट द वैल्यू ऑफ x व्हाट वी विल डू, वी हैव टू टेक log. तो जब log लिया आपने तो log 2 to r x इक्वल्स टू log 5. देयरफॉर x log 2 इक्वल्स टू log 5. So x equals to log 5 by log 2. फाइन. सो इसको आप लिख सकते हैं log 5 with base 2. सो x C ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट हो रहा है. फिर से देख लें इसको क्या क्या किया हमने. इट इज़ गिवन इन AP. सो मैंने 2b इक्वल्स टू a प्लस सी यूज़ किया. देन ये पावर पे डाला, log m प्लस log n को log m इंटू n किया. देन log गेट कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड एंड देन वी टुक 2 to the power x एज ए t. फिर इसको ओपन करके वी गॉट अर इक्वेशन t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5. तो इसके रूट्स आ गए t इक्वल्स टू 1 और 5. तो t इक्वल्स टू 2 to the power x वी हैव टेकन. सो 2 to the power x इक्वल्स टू 1. सो x becomes 0. 0 is not satisfying the equation. Then we took 2 to the power x equals to 5. यहाँ पे आपके log लेने से x की वैल्यू log 5 by log 2 which is log 5 with base 2. Fine. So option C is the correct option. ठीक है डियर. चलिए यहाँ से आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वाज दैट? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैट्रिक्स के नेचर पूछी गई थी. ये जो मैट्रिक्स है लेट्स से A इक्वल्स टू 0 माइनस 4 प्लस आई 4 प्लस आई एंड 0. ठीक है. सो हमने जब मैट्रिक्स के टाइप डिस्कस किए थे उसके अंदर हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स था, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में रहते हैं. तो आपके जब ये एंट्रीज जो हैं सारे कॉम्प्लेक्स हैं 0 एंड माइनस 4 प्लस आई, तो ये आपने स्ट्रेट अवे हर्मिटियन या स्क्यू हर्मिटियन चेक करना था. तो अगर मैं स्क्यू हर्मिटियन देखूं तो स्क्यू हर्मिटियन क्या कहता था, अगर मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज करेक्ट माइनस A ट्रांसपोज पे आता था, मतलब बार पे आता था ऐसा. ठीक है ना. हर्मिटियन मैट्रिक्स में कैसे लिखते थे आप, यानी इस मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट करें और माइनस कॉमन लें तो वो A के इक्वल आए. ठीक है. तो मैं इसका A बार करूं अगर, A बार में ये 0 माइनस 4 माइनस आई 4 माइनस आई और 0. नाउ वी टुक, अगर कॉमन यहाँ से लूँ माइनस हर एक एलिमेंट से, सो क्या आएगा 0 4 प्लस आई एंड माइनस 4 प्लस आई एंड दिस इज 0. ठीक है. और इसका कॉन्जुगेट निकालें आप. इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूं तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस आई 0. कॉन्जुगेट निकली हुई है.
अब इसको डियर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये माइनस कॉमन निकाला तो ये -0 -4 माइनस आई, और ये आ जाएगा 4 माइनस आई 0, ठीक है। यानी इसके कॉन्जुगेट से अगर माइनस बाहर निकाला, ठीक है ना, ये कॉन्जुगेट से, तो ये आ गया स्क्यू हर्मिटियन, दैट इज द डेफिनेशन वाज स्क्यू हर्मिटियन। तो ये ऑप्शन क्या थी, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। मीन्स इसका कॉन्जुगेट किया और उसमें से माइनस निकाला, वो सेम हो गया ए के इक्वल, सो दैट इज known as skew Hermitian matrix. So D option is the correct one. ठीक है।